Welcome back once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी. डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसको हमने अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके भी देखा है. इन दिस वीडियो वी गोना डू सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन the past perfect tense. I hope that you will definitely like this video and it will give you a better understanding of what we studied. So without wasting any more time, let's go ahead and start the video. So let's go ahead and solve these questions first to see if we have completely understood what we have learned so far. So हमारा पहला क्वेश्चन हमें कहता है, by the time the meeting started everyone dash arrive. So हमें जो verb use करना है that is arrive, and the tense that we are talking about is the past perfect tense. So we know जब भी हम past perfect में कोई भी sentence बनाते हैं, so we use had and we use third form of the verb. So the answer to this question would be, by the time the meeting started, everyone had arrived. Had arrived. Okay, so let's revise once again. Had and third form of verb. So by the time the meeting started, everyone had arrived. So this is how you solve these questions. Now let's see the second sentence. She dash her homework before she went to bed. Now what we have to do is that we have to use finish as the verb, and as we did in this case, in case of arrive, we added had and used past participle or third form of this arrive. So same thing we'll do here. So she had finished. Okay, she had finished her homework before she went to bed. If you have not understood it, so what I'll do is that we'll relate this situation with the real life. Now the first sentence. मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं and आपकी मीटिंग होने वाली है, alright? and ये मीटिंग हो गई, सभी लोगों ने ये मीटिंग अटेंड की और सभी लोग इस मीटिंग में टाइम से आ गए जब तक ये मीटिंग स्टार्ट हो गई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग ऑन दैट डे व्हेन यू हैड द मीटिंग. और रेन की वजह से, बारिश की वजह से आपको लगता था कि शायद कुछ आदमी डिले हो जाएं, कुछ एम्प्लॉयज़ डिले हो जाएं इस मीटिंग के लिए. लेकिन जब मीटिंग हुई सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे जब तक मीटिंग स्टार्ट हो गई. ओके, नाउ द नेक्स्ट डे वन ऑफ योर कॉलीग्स आस्क्स दैट कि आपकी मीटिंग थी कल, क्या सभी आपके जो कॉलीग्स थे या आपके एम्प्लॉयज़ थे वो सभी टाइम से आ गए थे, मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था? तो आप उनसे कहते हो कि हाँ, जब तक मीटिंग शुरू हो गई थी सभी लोग आ चुके थे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग हियर. द मीटिंग, बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड, एवरीवन हैड अराइव्ड. जब तक मीटिंग स्टार्ट हो गई थी तब तक सभी लोग आ गए थे. नाउ the meeting started is past, right, as we know, and everyone had arrived is the past perfect. So the meeting started, that means it started in the past, but by the time it started everyone had arrived. So it's
This is past of this past, right? That's what I said in my last two videos as well. Past perfect is past of the past actually. Now let's see the third sentence, and let's imagine a situation here. First of all, let's read out the sentence. They dash the party before it started raining. They dash the party before it started raining. And the verb that we have to use is leave. Now, imagine आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और एक ऑफिस की पार्टी है जो आप अटेंड कर रहे हो, एंड बहुत से एम्प्लॉयज़ इसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके कुछ नॉन एम्प्लॉयज़, एक दो एम्प्लॉयज़ हैं जो निकल जाते हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं रेन शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू आर इन द ऑफिस डिस्कसिंग अबाउट हाउ द पार्टी वेंट, आपका एक कॉलीग आपसे कहता है कि ब्ला ब्ला पर्सन, ठीक है, XYZ पर्सन या XYZ पीपल, हैड दे लेफ्ट ऑलरेडी बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या वो ऑलरेडी जा चुके थे जब तक बारिश होगी, या उनको बहुत दूर जाना था, वो तो बहुत भीग गए होंगे. लेकिन आप उनसे कहोगे कि नहीं, वो भीगे नहीं, वो बारिश होने से पहले ही पार्टी से चले गए थे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग इन दिस सेंटेंस. वो पार्टी से पहले ही चले गए थे, बारिश शुरू होने से पहले ही चले गए थे. सो वील से दे हैड लेफ्ट द पार्टी before it started raining. They had left the party before it started raining, right? So this is how we use the verb. Now imagine this third situation, fourth one. Now let's first of all read out the sentence. When I arrived at the station, the train dash dash already left, right? Now imagine you are going somewhere by train, and आपकी ट्रेन जो है वो 10 बजे की है, ओके. लेकिन जब तक आप स्टेशन पे आ जाते हो तब तक समझ लीजिए 10 past 10 हो जाते हैं और 15 past 10 हो जाते हैं. And as the train was at 10 AM, so ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी होगी और आप वापस आ जाते हो, आप नहीं जा पाते हो जहाँ पे आपको जाना था. और आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स आपसे ये कहते हैं कि क्या वो आप वापस क्यों आ गए, आप गए क्यों नहीं. तो आप उनसे ये कहोगे कि यार मेरी ट्रेन छूट गई जब तक मैं स्टेशन पे पहुँचा, ठीक है, जब तक मैं स्टेशन पे पहुँचा ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, right? So this is what we are describing in this sentence. By the time, when I arrived at the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, the train dash dash already left. Okay? So यहाँ पे had already left. Alright? So let's repeat it again. When I arrived at the station, the train had already left. Okay? Now the third sentence. Ramesh dash lion before he visited the zoo. Ramesh dash lion before he visited the zoo. रमेश, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड जू चला जाता है आपके साथ, आप उनके साथ में जू ले जाते हो. जब आप जू पे पहुंचते हो तो जो आपको जानवर या एनिमल सबसे पहले दिखता है वो एक लायन है, और आपका फ्रेंड रमेश आपसे ये कहता है कि मैंने आज तक लायन को नहीं देखा है, मैंने कभी भी लायन को नहीं देखा था.
and you come back after you watch all the animals from the zoo, and next day आपके ऑफिस में से कोई दूसरा कलीग से फॉर एग्जांपल सुरेश आपसे ये कहता है कि आपकी ज़ू का विज़िट कैसा रहा, आपने कौन कौन से जानवर देखे। आप उनसे कहोगे हमने ब्ला 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 जानवर वहाँ पे देखे, और साथ के साथ आप उसको ये भी कहो कि रमेश ने लायन नहीं देखा था जब तक कि वो ज़ू नहीं गया था। ठीक है, दैट मीन्स उसने ज़ू जाने के बाद ही लायन देखा, या उसने ज़ू जाने से पहले कभी लायन नहीं देखा था। सो this is being described in this sentence. So what we'll do is that, again as I said never ऐसे ही यूज होगा जैसे यहाँ पे है, and see will be changed or converted into past participle, and it will be Ramesh, sorry यहाँ पे had आएगा, I just forgot. Ramesh had never seen lion before he visited the zoo. रमेश ने लायन नहीं देखा था जब तक कि वो जू नहीं गया था। ओके, या जू जाने से पहले उसने लायन कभी नहीं देखा था। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ सेंटेंस। राजीव was upset because he dash lose his wallet. अब मान लीजिए जब आप जू गए थे, यही सिचुएशन ले लेते हैं, आपके साथ रमेश के अलावा आपका एक और दोस्त जिसका नाम राजीव है वो भी था, एंड आप जू में कुछ परचेज कर रहे थे। ठीक है, आपका फ़ोन नेटवर्क नहीं आ रहा था, आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, एंड यू वांटेड टू गिव अवे कैश बट यू हैडंट। राजीव हैड कैश, ओके, एंड राजीव ने पेमेंट कर दी। लेकिन जैसे ही जू से आप बाहर आए या आप घर पहुंचने वाले थे, राजीव ने अपनी पॉकेट को चेक किया, उसके पॉकेट में उसका वॉलेट नहीं था, वॉलेट कहीं खो गया था। ऑलराइट, और जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हुआ। आपने उसको चेयर अप करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, आपका वॉलेट मिल जाएगा, या किसी और तरीके से उसको कंसोल करने की कोशिश की। राजीव जो कि अपसेट था बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, एंड जिस फ्रेंड को आप ये सिचुएशन सुना रहे थे कि रमेश ने कभी लायन नहीं देखा था जब तक कि वो जू नहीं गया था, आप उसी को ये भी कहते हो कि जब हम यार घर पहुंचे थे, राजीव जो था वो बहुत अपसेट था क्योंकि उसका वॉलेट खो गया था। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग said in this sentence. So Rajiv was upset because he had lost. Lose का third form or past participle form use होगा। Rajiv was upset because he had lost his wallet. राजीव अपना वॉलेट खो जाने की वजह से अपसेट था, right? So this is how we convert the sentences into past perfect. For a better understanding, let's take some more examples so that आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाए। Now let's see some more examples जिसकी वजह से हमारा ये concept और clear हो जाएगा। The first sentence, when the police arrived, thieves, and the verb is escape, right? Now imagine a situation, आप एक जगह पे हो, ओके, एंड आपके नेबरहुड में आपके नेबर्स के यहाँ रॉबरी हो जाती है, एंड दे कॉल अप दी पुलिस कि ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ पे चोरी हो गई या चोरी हो रही है। एंड जब तक पुलिस आ जाती है वहाँ पे चोर जो है वो भाग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट डे यू गो टू ऑफिस एंड आप अपने कॉलीग से ऐसी बात कर रहे होते हो और उनसे बोल रहे होते हैं कि यार कल तो हमारे यहाँ पड़ोस के यहाँ चोरी हो गई, हमारे नेबर के यहाँ चोरी हो गई, हमने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन जब तक पुलिस आई या जब पुलिस आई चोर भाग चुके थे, राइट? सो विल से व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई, thieves
had escaped. Sorry. Escaped. जब पुलिस आई चोर भाग चुके थे. Now let's understand the second example. स्नेहा आपकी एक फ्रेंड है एंड शी इज गॉन फॉर शॉपिंग. ओके, आपका दोस्त आपसे कहता है यार स्नेहा बहुत टाइम से दिखाई नहीं दी, वो कहाँ पे है. आप उससे कहोगे कि वो इस टाइम शॉपिंग कर रही है. आपका फ्रेंड उसे कह रही है यार उसके तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो शॉपिंग कैसे जा सकती है. लेकिन आप उसको नहीं, वो शॉपिंग कर रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, उसके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कंप्लीट. Right? So this is what we are mentioning in this sentence. So when you want to mention such situations, you'll say Sneha was shopping. Sneha shopping kar rahi thi because she had completed. Because she had completed her exams. उसने अपने exams खत्म कर दिए थे. Now let's see the 9th sentence. He dash complete his project before the deadline. मान लीजिए आपका एक कॉलीग है जिसको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है काम करने के लिए और उसको एक टाइमलाइन दी गई है, एक डेडलाइन दी गई है कि भाई इस डेट से पहले आपने ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है. से फॉर एग्जांपल 30th of May और 31st of May से पहले आपने ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है. लेकिन उसने वो प्रोजेक्ट 29th को ही ख़त्म कर दिया. सो आपका बॉस आपसे कहता है कि क्या आपके कॉलीग ने ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया था. तो आप उससे कहते हैं हाँ उसने तो डेडलाइन से पहले ही कर लिया था. सो यू विल से ही हैड कंप्लीटेड. He had completed his project before the deadline. Right? Now the next one and the last one. Anita was sad because she dashed the exams. Now आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनीता एंड वो फेल हो चुकी है एग्ज़ाम में, बाकी सब पास हो गए हैं. अब आपका फ्रेंड सर्कल एक जगह मीटिंग करता है, एक जगह बैठते हैं, एक जगह पार्टी करते हैं और इस पार्टी में अनीता नाम की जो लड़की है जो आपकी फ्रेंड है शी इज़ सैड. राइट? एंड व्हेन द पार्टी इज़ फिनिश्ड इन द इवनिंग आपका दूसरा दोस्त आपको कॉल करके आप दूसरा फ्रेंड जो है वो आपको कॉल करके पूछता है यार अनीता आज सैड क्यों थी, क्या हो गया, वाई वॉज शी सैड. सो आप उससे कहते हो कि यार अनीता सैड थी क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो गई है. शी कुडंट पास द एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम में फेल हो गई है. सो दिस इज़ हाउ यू विल डिस्क्राइब इट. अनीता वॉज सैड बिकॉज शी हैड फेल्ड द एग्ज़ाम. क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम था वो उसमें पास नहीं हो पाई, वो इसमें फेल हो गई. So I hope with these examples it's clear now how past perfect tense works. In our next video we will discuss about the negative and the interrogative sentences in the past perfect tense. Till then stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel, and if there are any suggestions or complaints you can mention it in the comment section. Thank you.